students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is queries, forms and reports in MS Access. Let's get started. Match each term to its definition correctly. Form. A. An object that shows selective data from a table. Table. B. An object that presents data in a formatted manner. Query. C. A column of information in a database table. Report. An interactive database object that allows you to enter and edit data. Field. The main object that stores data in an Access database. तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, आपको उन्हें क्या करना है, उनके डेफिनेशन से मैच करना है. In the previous chapter, you have learned how to create and work with tables in MS Access. Apart from the tables, you can also create other objects in the Access like query, form and report. Let us learn about these objects. Queries in MS Access. Query is a way of retrieving the information from one or more tables. Running a query is like asking a detailed questions to the database. In Access, usually query is created for viewing, changing and for defining a specific search condition to find exactly the data. MS Access provides 4 types of queries: select query, update query, cross-tab query and append query. In this chapter, we will learn to create the simplest type of query, i.e. the select query. तो बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कैसे हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं MS एक्सेस में और साथ ही साथ उसमें काम करते हैं. ठीक है, इसके अलावा अब हम जानेंगे एक्सेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे कि क्वेरी है, फॉर्म है और रिपोर्ट है. सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेरीज़ के बारे में. क्वेरीज़ जो होता है एक तरीका होता है जिसमें आप किसी भी टेबल से कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो. ये आप एक या एक से ज़्यादा टेबल से भी रिट्रीव कर सकते हो. जब भी आप किसी क्वेरी को रन करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप डेटाबेस से कोई ना कोई क्वेश्चन या डिटेल पूछ रहे होते हो. ठीक है, एक्सेस में क्वेरी जो होती है वो जनरली क्रिएट की जाती है ताकि आप किसी टेबल को व्यू कर सको, उसमें डेटास को चेंज कर सको, साथ ही साथ आप अपने सर्च कंडीशंस को स्पेसिफाई कर सको. MS एक्सेस जो होता है ये आपको 4 टाइप्स की क्वेरीज जो है वो अवेलेबल करवाता है. ठीक है, जैसे कि सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, cross tab query and append query. Now creating a select query. SS allows different ways to design queries. These are using query design, second using query wizard. Among these two methods, query design provides more flexibility to define customized queries. So we will learn this method for generating queries. Creating a query using query design. Design view gives us more control over creating a query. This is also known as simple select query. The steps to create a query in query design are as follows. Step 1. Open the required database. Open the create tab and in the queries group click on the query design button. Step 2. The show table dialog box is displayed from which you can select tables or queries to add to the query design. Step 3. Select the table from a show table dialog box from which the information is to be extracted and click on the add button. Step 4. The selected table will appear as a small window in the upper section of the query design, i.e. object relationship pane. The query window is divided into 2 panes. The top pane called object relationship pane displays the tables selected for the query. The bottom pane called design grid is used to add fields to query and also specify the क्राइटेरिया. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम सेलेक्ट क्वेरी को क्रिएट करते हैं. एसएस जो होता है ये आपको डिफरेंट वेज प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी क्वेरीज को डिज़ाइन कर सको. ठीक है, ये होती हैं आपकी यूजिंग क्वेरी डिज़ाइन एंड नेक्स्ट होता है आपका यूजिंग क्वेरी विजार्ड. ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कैसे हम क्वेरी को क्रिएट करते हैं यूजिंग क्वेरी डिज़ाइन. आपका जो डिज़ाइन व्यू होता है ये आपको कंट्रोल देता है ताकि आप अपनी क्वेरी को क्रिएट कर सको. ठीक है, इसे सिंपली कहा जाता है सिंपल सेलेक्ट क्वेरी. अब स्टेप्स के थ्रू जान लेते हैं कैसे हम क्वेरी को क्रिएट करते हैं क्वेरी डिज़ाइन में. आपको रिक्वायर्ड डेटाबेस को ओपन कर लेना है. देन आपको
क्रिएट टैब को ओपन कर लेना है, ठीक है, जो कि आपको क्वेरीज ग्रुप में नज़र आएगा। उसके बाद आपको क्वेरी डिज़ाइन बटन को क्लिक कर लेना है। फिर जो टेबल डायलॉग बॉक्स है ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें से आप अपनी टेबल्स को या फिर क्वेरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन को ऐड कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है टेबल को फ्रॉम शो टेबल डायलॉग बॉक्स, ठीक है। इसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। देन आपकी जो सेलेक्टेड टेबल है वो अपीयर हो जाएगी एज ए स्मॉल विंडो इन द अपर सेक्शन, ठीक है। और इस डिज़ाइन को हम ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पैन कहते हैं। जो क्वेरी विंडो है वो आपके 2 पैन्स में डिवाइड हो जाएगी। एक होता है आपका टॉप पैन, ठीक है, जिसे हम ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पैन कहते हैं, जो कि डिस्प्ले करता है टेबल्स को सेलेक्टेड फॉर द क्वेरी। दूसरा होता है आपका बॉटम पैन, जो कि डिज़ाइन ग्रिड माना जाता है और ये हम यूज़ करते हैं फील्ड्स को ऐड करने के लिए इन क्वेरीज में और साथ ही साथ किसी क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करने के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड द डिज़ाइन ग्रिड। The design grid shows the following headings. Field. The first row of the design grid displays the selected field names from the table. Table. It displays the name of the existing table. Sort. This property is used to filter data in ascending or descending order. It is optional. Show. It displays a check mark which indicates that this field will be visible when the query is executed. Criteria. It contains the condition on the basis of which the records will be filtered in the query output. Or this property is used to specify multiple criteria. Step 5. Choose the fields you want from the drop-down list of the field option in the bottom pane of query window. Step 6. Specify the condition in the criteria option. For example, to see only the records of students whose age is either equal to or greater than 13. Under the field age in the criteria row, enter the condition greater than equal to 13 as shown. Step 7. Now to see the result of the query, click on Run button on the results group in the Design tab. The result of the query is displayed in the datasheet view, showing only the specific records satisfying the criteria. Step 8. Save the query by clicking at the Save button on the Quick Access tool bar. अब बच्चों यहाँ पे डिज़ाइन ग्रिड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन ग्रिड जो है ये आपके फॉलोइंग हेडिंग के साथ आता है। सबसे पहला इसमें फील्ड आता है, जो कि फर्स्ट रो माना जाता है किसी भी डिज़ाइन ग्रिड का, और ये डिस्प्ले करता है आपके सेलेक्टेड फील्ड के नाम को। इसके बाद आता है टेबल, ठीक है। टेबल जो होता है ये नेम ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल को दर्शाता है। इसके बाद आता है शॉर्ट। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये किसी भी डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज़ की जाती है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ये ऑप्शनल होता है। इसके बाद आता है शो। ये डिस्प्ले करता है आपके चेक मार्क्स को, जो कि इंडिकेट करता है कि आपकी जो फील्ड है वो विजिबल होती है जब आपकी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। इसके बाद आता है क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपकी कंडीशन को कंटेन करता है, जो कि आपके रिकॉर्ड्स के बेसिस पे होता है, जिसे आप फिल्टर करने वाले होते हो क्वेरी आउटपुट में। या फिर ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके मल्टीपल क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। अब बच्चों जो ऊपर आपने स्टेप्स किए थे उसके कंटिन्यूएशन में आपके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, वो हम समझ लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, फील्ड को चूज़ करना है, ठीक है, और इसे आप चूज़ करेंगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फील्ड ऑप्शन, जो कि आपको क्वेरी विंडो के बॉटम पैन में नज़र आएगा। आपको कंडीशन को स्पेसिफाई करना है इन द क्राइटेरिया ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे आपको अगर एक वैल्यू दर्शानी है जो कि इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन हो 13 के, ठीक है। अब इसको आप एज फील्ड में ही फिल करोगे इन द क्राइटेरिया रो, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट ऑफ द क्वेरी और उसके बाद आप रन बटन पे क्लिक करेंगे ऑन द रिजल्ट्स ग्रुप इन द डिज़ाइन टैब। तो आपका जो रिजल्ट है क्वेरी का वो डिस्प्ले हो जाएगा इन द डेटा शीट व्यू और आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स जो है वो दिखने लग जाएंगे। इसके बाद आप क्वेरी को सेव कर लेंगे बाय क्लिकिंग एट द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। Now creating query on multiple criteria. Multiple criteria means a condition satisfying two or more criteria. We can
specify the condition in which one of the multiple criteria is true or all the multiple criteria are true. When we type two criteria on the same line, only records where both criteria are met will be displayed when we run the query. This is called AND condition. When we type one criteria on the criteria row and the second criteria on the OR row, the records where either criteria are met will be displayed as output. This is called OR condition. For example, in the student detail table, query 1, extract record of male students who belong to class 8th A and condition. Query 2, extract records of male students or students are in class 8th A or condition. To set multiple criteria, follow the given steps. Step 1, start a new query in design view and add the table in query window from which the data to be extracted. Step 2, add the required field to the query grid. Step 3, click in the criteria section of the field and enter the required condition and or. Step 4, now run the query to see the resultant query which shows only selective records. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम मल्टीपल क्राइटेरियाज पे क्वेरी को क्रिएट करते हैं. मल्टीपल क्राइटेरियाज का मतलब होता है आपकी दो या दो से ज़्यादा क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करना. ठीक है, ये स्पेसिफाई करती है एक कंडीशन को जिसमें आपके मल्टीपल क्राइटेरियाज ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में दर्शाए जाते हैं. जब आपके टू क्राइटेरियाज सेम लाइन में होते हैं तो ये रिकॉर्ड्स को बोथ क्राइटेरिया में दर्शाते हैं और इन्हें डिस्प्ले भी करते हैं जिसमें हम क्वेरी को रन करते हैं. ठीक है, इसी को एंड कंडीशन कहा जाता है. जब हम एक क्राइटेरिया को टाइप करते हैं ऑन द क्राइटेरिया रो और जो आपका सेकंड क्राइटेरिया होता है वो और रो में दिखाया जाता है. ठीक है, तो जो रिकॉर्ड है जहाँ पे आपके ईदर क्राइटेरियाज मिलते हैं या डिस्प्लेड होते हैं उन्हें एज अ आउटपुट आपको डिस्प्ले की जाता है. इसे ही हम और कंडीशन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपकी क्वेरी 1 होती है, ये आपके रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करती है किसके, मेल स्टूडेंट्स के जो कि 8th क्लास से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपकी एंड कंडीशन आती है. सेकंड क्वेरी में आप उन मेल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करते हो जो कि क्लास 8th ए में पढ़ते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे और कंडीशन अप्लाई की जाती है. अब हम मल्टीपल क्राइटेरियाज सेट करने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनको समझ लेते हैं. सबसे पहले आपको न्यू क्वेरी को स्टार्ट कर लेना है इन डिज़ाइन व्यू. देन आपको टेबल को ऐड करना है इन क्वेरी विंडो फ्रॉम विच द डेटा इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, जिस भी टेबल से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं आप उसी टेबल को ऐड करेंगे. इसके बाद आप ऐड करेंगे रिक्वायर्ड फील्ड को टू द क्वेरी ग्रिड. देन आप क्राइटेरिया सेक्शन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप रिक्वायर्ड कंडीशन को एंटर करेंगे जो कि एंड या फिर और होगी. ठीक है, उसके बाद आप क्वेरी को रन करेंगे टू सी द रिजल्टेंट क्वेरी. ठीक है, इसमें आपके सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स को ही दिखाया जाएगा. Creating a query using multiple tables. A common field among the two or more tables help to correlate the data values stored in these tables. So we want to generate a query with its columns selected from different tables. We need to first establish a relationship among these on their common field. For example, look at these two tables. Let us learn how to create relationships among them before creating a query. Creating relationship. Step 1, click on relationships in the relationships group of the database tools tab. The show table dialog box will appear. Step 2, select the tables from the show table dialog box and add them one by one and close the show table dialog box. Step 3, select the common field from the first table and drag it on the same field in the second table. The edit relationship dialog box will appear. Step 4, select the option enforce referential integrity. Step 5, click on create button. In it, a line joining the two tables on the common field will appear. Step 6, click on save button in the quick access toolbar.
तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम क्वेरीज को क्रिएट करते हैं यूजिंग मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, एक कॉमन फील्ड जो होती है 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स में, वो आपको हेल्प करती है ताकि आप अपनी डाटा वैल्यूज़ को आपस में क्या कर सको, कोरिलेट कर सको। ठीक है, अगर आप इसमें कोई क्वेरी जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश कर सको। अब यहाँ पे कुछ टेबल्स आपको दी गई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये आप समझ सकते हैं, इन्हें स्टडी कर सकते हैं। नाउ अब हम जान लेते हैं क्रिएटिंग रिलेशनशिप। ठीक है, आपको सबसे पहले क्लिक करना है रिलेशनशिप पे, जो कि आपको रिलेशनशिप ग्रुप में नज़र आएगा डेटाबेस टूल टैब के। आपके सामने शो टेबल डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। देन आपको टेबल्स को सेलेक्ट करना है शो टेबल डायलॉग बॉक्स में से। उसके बाद आपको उनको ऐड करना है 1 बाय 1। ठीक है, उसके बाद जब आप इन टेबल्स को ऐड कर लोगे तो आपको शो टेबल डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको कॉमन फील्ड को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। उसके बाद आप उसको ड्रैग करके लेके जाएंगे ऑन द सेम फील्ड इन द सेकेंड टेबल। ठीक है, तो आपके सामने एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाता है। इसके बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। इसी में ही एक लाइन जो है वो आपकी 2 टेबल्स को ज्वाइन करती हुई नजर आएगी ऑन द कॉमन फील्ड। ठीक है, इसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है इन क्विक एक्सेस टूल बार। नाउ क्रिएटिंग क्वेरीज। Step 1. Start a new query in the design view and add both the related tables in the query window. Step 2. Select the fields 1 by 1 from both the tables. Step 3. To apply certain criteria on the edit field, use criteria section of the respective fields. Step 4. Run the query to view the extracted information from the related tables. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम क्वेरीज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, किसी भी न्यू क्वेरी को स्टार्ट करने के लिए आपको डिज़ाइन व्यू पे जाना पड़ेगा। देन आपको दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिलेटेड टेबल्स इन द क्वेरी विंडो। उसके बाद आपको फील्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा 1 बाय 1 फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ठीक है, उसके बाद आपको टू अप्लाई सर्टेन क्राइटेरिया, आपको किसी भी फील्ड में अगर ऐड करना है तो आपको उस क्राइटेरिया को यूज़ करना पड़ेगा ऑफ द रिस्पेक्टेड फील्ड। देन आपको क्वेरी को रन करना पड़ेगा टू व्यू द एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिलेटेड टेबल्स। थिंक बॉक्स। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ द क्राइटेरियन मार्क्स greater than equal to 10 and marks less than equal to 50 and marks greater than equal to 10 और marks less than equal to 50। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट्स हैं क्राइटेरियन मार्क्स से, उन्हें क्या करना है, आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ। फॉर्म्स इन एसएस। Forms are used to enter, edit and display data stored in tables in a user-friendly manner. MS Access links a form to a table and stores the information that you enter in the form into the table. A form is a very good option to use when you have numerous fields in a table. This way you can see all the fields in one screen. SS provides 3 main views in which a form is displayed. Form view is used to enter, edit and view data. Design view is used to adjust the design of your form. It gives you a more detailed view of the structure of a form, such as header, detail and footer section. Layout view is used to change the appearance and size of various controls of a form. अब बच्चों हमने क्वेरीज के बारे में समझ लिया, अब हम फॉर्म्स के बारे में समझ लेते हैं कि फॉर्म्स का क्या यूज़ होता है एक्सेस में। फॉर्म जो होते हैं ये आपके डेटास को एंटर करने के लिए, एडिट करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये आपको यूज़र फ्रेंडली मैनर्स में ही डिस्प्ले करते हैं। एमएस एक्सेस जो होता है ये हर टेबल के साथ एक फॉर्म जो है लिंक करता है। ठीक है, और इसमें आपके डेटा की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। एक फॉर्म जो होता है गुड ऑप्शन माना जाता है ताकि आप न्यूमरस फील्ड को, उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सको या उन्हें एक्सेस कर सको। ठीक है, इस तरह से आपकी जो फील्ड्स होती है वो एक स्क्रीन में दिखाई जाती है। अब एक्सेस जो होता है ये आपको 3 मेन व्यूज़ को दर्शाता है जिसमें आपके फॉर्म्स को डिस्प्ले किया जाता है। सबसे पहला होता है फॉर्म व्यू, ये आपके डेटा को एंटर, एडिट और व्यू करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन व्यू,
ये आपके डेटा के या आपके फॉर्म के डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये आपको आपके स्ट्रक्चर, आपके फॉर्म के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा डिटेल भी देता है। लेआउट व्यू जो होता है ये आपके जो डेटा होता है उसका जो फॉर्म होता है उसके अपीयरेंस को, उसके साइज़ को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। Creating a form. To create a form, the steps are as follows. Step 1, select a table or a query in the navigation pane that you want to use for the form. Step 2, click on the Create tab in the Forms group. Select the Form button. A new form will open up in the Layout view. When a new form is created, it by default opens in layout view. Step 3, you can click on the various fields and drag them to change their position on the form. In this way, you can change the appearance of the form in the layout view. Step 4, click on the save button on the quick access toolbar and save the form by any name as you like. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको टेबल या फिर क्वेरी को सेलेक्ट कर लेना है इन द नेविगेशन पैन, जिसको भी आप चाहते हो अपने फॉर्म में अप्लाई करना या यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद आप क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे और इन द फॉर्म ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म बटन पे। एक न्यू फॉर्म जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा इन द लेआउट व्यू। ठीक है, जब न्यू फॉर्म क्रिएट हो जाएगा उसके बाद ये ओपन होगा इन द लेआउट व्यू। आप क्लिक कर सकते हैं ऑन वेरियस फील्ड और ड्रैग करके आप उनकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं फॉर्म में। ठीक है, इस वे में आप उसकी अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं इन द लेआउट व्यू। ठीक है, उसके बाद जब आपका फॉर्म जो है सेट हो जाएगा देन आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार आपका जो फॉर्म है, जो भी नेम आप उसे दोगे उस नेम से वो सेव हो जाएगा। More to know, after saving a form object, its icon will appear in the navigation pane. You can double click on this icon to open the form anytime later. जब आप एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हो तो ये आपके नेविगेशन पैन में अपीयर होने लगता है। आप इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं किसी भी टाइम। Navigating between records. In a form, navigation refers to moving from one record to another. We can view and move through the various records by using the different navigation buttons situated at the bottom of the form window. ठीक है, आप इन रिकॉर्ड्स के बीच में क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। इस फॉर्म में नेविगेशन मतलब होता है आपका एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड में जाना। ठीक है, इसमें ये हम कब करते हैं, जब हम एक फॉर्म का व्यू देखने के लिए दूसरे फॉर्म पे जाते हैं। ठीक है, या दूसरे फॉर्म से हम फर्स्ट फॉर्म में आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं। एडिटिंग रिकॉर्ड्स थ्रू अ फॉर्म. To edit records using the form, we need to view in the form view. In the form view, we can easily edit the existing records by making them active on the screen, making the required changes and then clicking on the next button. The steps to edit the records are given below. Step 1. Open the Home tab and click on the View button drop down arrow. Select the form view from the list displayed. Step 2. Click to bring the cursor in the text box and make the necessary changes to the data. Here we have changed S_name from Sangini to Sarthak. Now step 3. Move to the data in the next field by pressing the tab key or by clicking with the mouse. Step 4. Save the changes by clicking on the save button from the quick access tool bar. अब बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम रिकॉर्ड्स को एडिट करते हैं। ठीक है, थ्रू अ फॉर्म। आप किसी भी रिकॉर्ड को एडिट करते हो यूजिंग अ फॉर्म, तो उसके लिए आपको फॉर्म व्यू को ओपन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, या यूँ कह लो कि आपको रिकॉर्ड्स को व्यू करना होता है फॉर्म व्यू में ही। ठीक है, फॉर्म व्यू में आप इजीली अपने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसमें आप कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, अपने हिसाब से आप उसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं कि कैसे हम रिकॉर्ड को एडिट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है होम टैब को, उसके बाद आपको क्लिक करना है व्यू बटन पे। ठीक है, उसके बाद आपको फॉर्म व्यू को सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है ब्रिंग द कर्सर इन द टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपको अपने नेसेसरी चेंजेस को मेक कर लेना, जो भी आप डाटा में चेंज कर लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे
नेम चेंज किया है, ठीक है। उसके बाद आप अपने डेटा को मूव करेंगे इन द नेक्स्ट फील्ड बाय प्रेसिंग द टैब की और बाय क्लिकिंग विद द माउस, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपके चेंजेस होते रहेंगे आप अपने चेंजेस को सेव करते रहेंगे बाय क्लिकिंग द सेव बटन फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार। नोट, be careful while changing data in a form as these changes will also be reflected in the table that is linked to that form। बच्चों जब आप फॉर्म में चेंजेस कर रहे होते हो तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं ये आपके टेबल को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि जो आपकी टेबल होती है ये आपके फॉर्म से लिंक्ड होती है। रिपोर्ट्स इन एक्सेस, अ रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा स्टोर्ड इन अ टेबल or query in a printed format. The report object allows us to control the way the data is displayed when it is printed on paper. The reports group of the create tab shows the various options to create a report object. Here we will use the report wizard to create a report. Creating a report using the report wizard. Let us learn to create report in MS Access to display the records of the marks table. First, open the required database, click on the Create tab. In the Reports group, click on the Report Wizard button to start the Report Wizard. Third, in the first step of the Report Wizard, you will be asked to select the table query and the fields that you want to display in the report. A. Select the S_table. B. Select the fields from under the available fields section as shown in the picture by first selecting the field and then clicking on the greater than button to transfer to the selected fields section. C. To transfer all the fields together, you can click on the greater than button in the report wizard. D. When you have transferred all the fields that you want to display in the report, click on the next button to move over to the next step of the report wizard. Fourth, the next screen will ask you to group data on the basis of any field. Since you do not want to group data, simply click on the next button to go to the next step of the report wizard. Fifth, select the section from the first drop down list, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो बच्चों हम रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसका एक्सेस में क्या काम होता है। रिपोर्ट जो होते हैं ये आपके इफेक्टिव वे कहलाते हैं ताकि आपके जो डेटा है उन्हें अच्छे से प्रेजेंट किया जाए आपकी टेबल और क्वेरी में, ठीक है। इसे प्रिंटेड फॉर्मेट में ये दर्शाते हैं। रिपोर्ट जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके वे ऑफ डाटा को कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से वो डिस्प्ले होगा, किस तरह से उसे प्रिंट किया जाना चाहिए पेपर पे। रिपोर्ट ग्रुप जो होते हैं किसी भी क्रिएट टैब के, ये आपके वेरियस ऑप्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं, जिसके थ्रू आप रिपोर्ट्स ऑब्जेक्ट को ईजिली क्रिएट कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिपोर्ट विजार्ड को टू क्रिएट अ रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे हम रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं यूजिंग रिपोर्ट विजार्ड। सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड डेटाबेस को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। रिपोर्ट्स ग्रुप में आप क्लिक करेंगे रिपोर्ट विजार्ड बटन पे ताकि आप रिपोर्ट विजार्ड को स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में किसी भी रिपोर्ट विजार्ड के आपसे पूछा जाएगा टू सेलेक्ट द टेबल क्वेरी एंड द फील्ड, जिसपे भी आप अपनी रिपोर्ट को डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले आप S_टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जहां से आप अपनी अवेलेबल फील्ड सेक्शन को दर्शाना चाहते हैं। उसके बाद आप ट्रांसफ़र करेंगे ऑल द फील्ड टुगेदर, ठीक है। और इसके लिए आप ग्रेटर देन का जो ये साइन होता है इसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इन द रिपोर्ट विजार्ड, ठीक है। जब आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फील्ड्स में जहाँ पे भी आप उन्हें दर्शाना चाहते थे रिपोर्ट में, देन आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि आप नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें ऑफ द रिपोर्ट विजार्ड। नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो आपसे पूछेगी ग्रुप ऑफ डेटास के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ एनी फील्ड, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई भी डेटा ग्रुप को नहीं चाहते सपोज, तो आप सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट रिपोर्ट्स विजार्ड पे पहुँचा दिया जाएगा। उसके बाद आपको सेक्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, देन आप नेक्स्ट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ,
Select the tabular layout and click on the next button. Click on the format from the list of styles and click on the next button again. 8th, in the next step, wizard will ask you to give a name to the report that will be displayed at the top of the report. Give a name and click on finish. The report appears as shown on next page. You can print the report by clicking on the file tab and selecting print and then making requisite entries in the print backstage view. तो बच्चों हम जान लेते हैं कि रिपोर्ट का यूज़ क्या होता है एक्सेस में। रिपोर्ट जो होता है वो आपका इफेक्टिव वे माना जाता है किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने का, जो भी आपके टेबल में या क्वेरी में स्टोर्ड होती है। साथ ही साथ ये इसे प्रिंटेड फॉर्मेट में भी डिस्प्ले करता है। रिपोर्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये आपको अलाउ करते हैं ताकि आप अपने डेटा के वे को कंट्रोल कर सके कि किस तरह से ये डिस्प्ले होगा जब ये प्रिंट होगा पेपर पे। ठीक है, रिपोर्ट ग्रुप जो होते हैं किसी भी क्रिएट टैब के, ये आपको शो करते हैं वेरियस ऑप्शंस ताकि आप रिपोर्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सको। ठीक है, यहाँ पे हम रिपोर्ट विजार्ड को यूज़ करेंगे ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो क्रिएट की जा सके। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे हम रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं रिपोर्ट विजार्ड को यूज़ करके। आपको ओपन कर लेना है रिक्वायर्ड डेटाबेस को और उसके बाद आपको क्रिएट टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, रिपोर्ट ग्रुप्स में आपको क्लिक करना है रिपोर्ट विजार्ड बटन पे ताकि आप रिपोर्ट विजार्ड को स्टार्ट कर सको। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में किसी भी रिपोर्ट विजार्ड के आपसे पूछा जाएगा ताकि आप टेबल या फिर क्वेरी को सेलेक्ट कर सको जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं या जिस पे भी आप रिपोर्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको S_ टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको फील्ड को सेलेक्ट कर लेना है फ्रॉम अंडर द अवेलेबल फील्ड्स। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रांसफ़र कर लेना ऑल फील्ड्स टुगेदर। जैसे कि आप यहाँ पे जो ये एरो देख रहे हैं ग्रेटर देन का, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे इन द रिपोर्ट विजार्ड। ठीक है, जब आप ट्रांसफ़र कर लेंगे ऑल द फील्ड्स को जिनको भी आप चाहते थे रिपोर्ट्स में दर्शाना, देन आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाए रिपोर्ट विजार्ड के। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन जो है ये आपसे पूछेगी कि आपको ग्रुप ऑफ डेटा को किसी भी फील्ड में दर्शाना है। ठीक है, अगर आप ग्रुप ऑफ डेटा को नहीं चाहते दर्शाना तो आप सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा रिपोर्ट विजार्ड के। इसके बाद आपको सेक्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आप टैबुलर लेआउट को सेलेक्ट करेंगे और आप नेक्स्ट बटन पे दोबारा से क्लिक करेंगे। देन आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टाइल्स। ठीक है, इसके बाद आप दोबारा से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो विजार्ड है ये आपसे आपके रिपोर्ट का नाम पूछेगा जो कि आप रिपोर्ट के टॉप पे दर्शाना चाहते हैं। आप वहाँ पे नेम देंगे, देन आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। आपकी जो रिपोर्ट है वो आपके नेक्स्ट पेज पे अपीयर हो जाएगी। आप इस रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल टैब। ठीक है, इसके बाद आप प्रिंट को सेलेक्ट करेंगे, देन आपकी जो रिक्वेस्ट एंट्रीज हैं वो आपके प्रिंट बैकसाइड व्यू में क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। नोट, बाय डिफॉल्ट इट विल सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर्स। थिंक बॉक्स, Megha has to create a report from a query which she has generated. Is it possible to do so? बच्चों ये आपको सोचना है, मेघा एक लड़की है जिसको एक रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, वो भी वो क्वेरी से क्रिएट करना चाहती है जिसको उसने जनरेट किया है। तो क्या ये उसके लिए पॉसिबल है करना, ये आपको बताना है। थिंक बॉक्स, कैन वी ऑल्सो डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर अ रिपोर्ट? क्या हम किसी रिपोर्ट का क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं? तो बच्चों ये भी आपको सोचना है और डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।